So good morning, everyone. As we have started discussed yesterday about Henry's law for solution of a gas in a liquid. So what was the basic, you can say, formula, just one simple relationship between the mole of, or you can say the mole fraction of the gas present in that solution at equilibrium with that solution. मतलब अगर उस गैस का आपने solution बनाया, जब equilibrium establish हो जाता है, maximum amount of gas is when dissolved, so at that time the mole fraction of gas which is dissolved in that particular solution is directly proportional to the pressure or the partial pressure of that gas over the liquid. उस गैस के जितने मोल्स लिक्विड की सरफेस के सॉल्यूशन की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे, उस प्रेशर, वो जितना प्रेशर वो अप्लाई करेंगे, दैट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस. तो वी डिराइव्ड वन मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन आल्सो yesterday. According to that, partial pressure of gas is equal to Henry's constant plus mole fraction of that gas. You can also write A, or for any component, if you have two or more than two components, so you can mention the name of the components as well. In a mixture of gases also the same formulation will be applied. Means Dalton, because he formulated for mixture of gases, so Henry's law and Dalton's law combinedly can be applied to mixture of gases present in the form of a solution in a liquid. ठीक है, एक गैस का solution है या दो से ज्यादा gases का solution है, same law can be applied but individually for particular partial pressure and mole fraction of that particular gas. So here in this question मैंने बेटा starting में I shared screen, जो अभी join किया जिन्होंने, you can go through the book. Question number 2.6, in text question. After that, Henry's law. The question is, you need to find here Henry's law constant हमें find करना है, and given है H2S gas की water में solubility है 0.195 मोलर at STP, और आपको find करना है KH. So you have to apply this thing, partial pressure of gas is equal to Henry's law constant multiplied by its mole fraction. Always remember that Henry's law can be applied in two terms. Either you can use the mass of the gas, otherwise mole fraction. But here the solubility is given in molality. So आपको चाहिए mole fraction. You need to convert this molality into mole fraction. How will convert this? Yes, anyone who can tell? How will find mole fraction from the molality of H2S? Hurry up. These things too must be on your tips now. Who will tell? What is the meaning? Just wait. I'll ask someone, otherwise you will not speak in this way. Jasmine Kaur, medical. Beta, can you tell what is the meaning of molality, or what do you mean by this 0.195 molar H2S in water? What is meant by this? Can you explain? Because Jasmine. Yes, ma'am. What is meant by ma'am, this means that 0.1595 moles of solute in 100 kg of solvent. 100 kg? Yes, correct. Solvent is okay, but कितना kg solvent चाहिए molality के लिए? Sorry, ma'am, 1 kg. वेरी गुड. अगर आप 100 तो यहाँ यूज ही नहीं करोगे, या तो 1000 ग्राम यूज करोगे या फिर 1 kg. 100 में कंफ्यूज हो जाओगे, 100 kg नॉट टू बी यूज्ड. ओके, तो 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे आपको मिल रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S हमारे पास आ गए 0.195. ठीक है, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट जो आपके पास आया, याद रखो बेटा, मास को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं W से, मोल्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं N से. मास ऑफ वाटर हियर 1 kg, दैट इज 1000 ग्राम.
अब आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, क्योंकि हमें H2S का ही पार्शियल प्रेशर मतलब KH H2S के लिए फाइंड करना है, तो वी आर यूजिंग दिस इक्वेशन फॉर द सॉल्यूट इटसेल्फ एंड सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर यहाँ मेंशन किया हुआ है STP, अदरवाइज STP कंडीशंस आर चेंज बाय IUPAC nowadays it is 1 bar, but बुक्स में पुराने वैल्यू से सॉल्व है तो वहां पे 0.987 बार दिया हुआ, अदरवाइज यू कैन सॉल्व बाय 1 बार इटसेल्फ, बट मैं आपको वो बुक्स में जो मेथड है उसी से करवा रही हूँ। और यहाँ आपको फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। Yes, now who will tell number of moles of water कितने होंगे यहाँ, इसके मोल तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन से मिल गए 0.195, how many moles of water are present here, who will tell? 55.55. 55.55. Because when water is 1000 gram, तो इसमें number of moles अगर आपको water के निकालने हैं तो आप given mass over molar mass, if we apply this simple formula of finding mole, तो 18 से इसको divide कर दो 55.55 मोल आ जाता है यहाँ पे आपको, ठीक है, तो in this way you can find out, just wait. So 55.5 moles of water, so mole fraction of H2S will be equal to 0.195 over 0.195 plus 55.55. So when you solve this, it will come out to be 0.0035. ठीक है, जो मोल फ्रैक्शन यहाँ पे आएगा आपके पास, that will be 0.0035 if you find this after solving. Okay, now you have got the mole fraction. Now we'll put values in this part. Partial pressure of H2S is equal to 0.987 bar. STP दिया हुआ आपको, तो you need to use this value, and then KH will be equal to partial pressure, or you can say pressure at STP over mole fraction of H2S. It will be 0.987 over 0.0035, and it comes out to be 282 bar. This is the answer for this question. आपको निकालना था KH, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट की जो यूनिट होती है बेटा, वो जो प्रेशर की यूनिट है वही होगी, बिकॉज मोल फ्रैक्शन इज डायमेंशनलेस, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। तो इसके आगे यूनिट आपने वही लगानी है। अगर आप प्रेशर यहाँ पे ATM में यूज कर रहे हो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन इट विल बिकम्स 1 एटमॉस्फेरिक। ओके, तो अकॉर्डिंगली यू कैन राइट, पास्कल में यूज कर रहे हो तो मींस व्हाट एवर द यूनिट यू कैन यूज इफ इट इज नॉट आस्क्ड टू मेंशन द यूनिट। और इस एग्जाम में अगर यूनिट नहीं दी हुई है प्रेशर की, तो आप दोनों कोई भी यूनिट यूज करें। क्वाइट सिंपल क्वेश्चंस आर देयर इन दिस चैप्टर। आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं, सारे क्वेश्चंस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम विल बी देयर। 2.7 क्वेश्चन जो है दैट इज Henry's law constant for CO2. Here KH is given in the question and its value is 1.67 multiplied by 10 raised to the power 8 Pascal. At 298 Kelvin, calculate the quantity of CO2 in 500 ml of water. हमें mass of CO2 फाइंड करना है in 500 milliliter water, and pressure is given here 2.5 atmosphere. Okay, so in this question KH value for carbon dioxide is given in Pascal, and pressure, partial pressure of CO2 over the solution, वाटर में उसको जब मिक्स किया तो सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है दैट इज 2.5 एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब आपको यहाँ एटमॉस्फेयर में है KH की वैल्यू पास्कल में, तो
आप इस तरह से वैल्यूज एज सच पुट नहीं करोगे, यू विल हैव टू कन्वर्ट दिस प्रेशर इनटू पास्कल। तो यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट करने के लिए एनीवन कैन टेल हाउ इज 1 atm रिलेटेड टू पास्कल? एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐसा यूनिट पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 11th में सारे बताए थे आपको। will tell nobody? प्रेशर के बेटा थोड़े से रिलेशन याद रखो। 1 atmospheric pressure is equal to 1.01325 multiplied by 10 raised to the power 5 पास्कल। अगर आप ये इतना बड़ा टर्म, इसको सीधा भी लिख सकते हो 10132 ये 5 ही है डिजिट्स, तो विदाउट डेसिमल यू आल्सो कैन राइट, बट इन साइंटिफिक नोटेशन इट इज लाइक दिस। ठीक है, अगर ये पीछे वाले डिजिट्स नहीं भी याद रहते, एटलीस्ट 1.013 तक तो याद रखो आप। ठीक है, क्योंकि 1.01325 जो एग्जैक्टली बार्स होते हैं 1 एटमॉस्फेयर में। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू दिस मच बार। ठीक है, और उसके साथ 10 raised to the power 5 लगा दो तो वो पास्कल हो जाता है। एक तो कन्वर्जन थोड़े से साइड पे नोट कर लो। 1 atm is equal to 76 millimeter of mercury। मर्करी के लेवल पे हम निकालते हैं ना बैरोमीटर में प्रेशर, तो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। इसी को एक पुरानी यूनिट थी 760 टॉर। ये ना इस चैप्टर में कई जगह पे आपको रेफरेंस बुक्स में यूनिट मिल जाएगी, TORR टॉर। टॉरिसेली जो एक्सपेरिमेंट्स थे उस साइंटिस्ट के बेस पे यूनिट बना हुआ है। तो ये 1 टॉर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप याद रखो। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 बार and 1 atm is equal to 1.01325 10 raised to the power 5 bar पास्कल। ठीक है, ये 4 रिलेशंस याद रख लो एटमॉस्फेयर के साथ, इससे आप कोई भी कन्वर्जन फिर कर सकते हो। और 1 बार को अगर पास्कल में कन्वर्ट करना है, 1 बार इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power 5 पास्कल। सीधा रिलेशनशिप है। इसी सिंपल रिलेशनशिप की वजह से अब जो एसटीपी में हम स्टैंडर्ड प्रेशर लेते हैं 1 बार लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली बस एक 10 raised to the power 5 के साथ रिलेटेड है एसआई यूनिट के साथ। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज रिलेटेड इन दिस मैनर। ये इन दोनों का जो रिलेशन है, तो दैट यू नीड टू अप्लाई व्हेनेवर क्वेश्चंस आर टू बी सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रेशर को कन्वर्ट कर लिया पास्कल में। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है? यहाँ पे हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 आपके पास आ गया। यू कैन इजीली फाइंड नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ, जो हमारे पास फॉर्मूला है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू KH मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू partial pressure of CO2 over KH. Put the values. Partial pressure is 2.5, 1.01325 multiplied by this over KH था हमारा 1.67। अब ये दोनों पास्कल में है, कैंसल आउट हो जाएंगे यूनिट्स और डायमेंशन लेस आ जाएगा आपके पास मोल फ्रैक्शन का यूनिट। ठीक है, तो इट कम्स आउट टू बी, मैं आपको डायरेक्ट आंसर अभी यहाँ पर एक मोल फ्रैक्शन जो हमारा आ रहा है दैट इज 1.517 10 raised to the power minus। ये आपके पास आया मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ मोल फ्रैक्शन कार्बन डाइऑक्साइड का ये आपको फाइंड करना है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is dissolved, which is dissolved in 500 milliliter water. Can anyone tell how it can be calculated? आपको निकालना है 500 मिलीलीटर अगर वाटर है आपके पास, जो सॉल्यूशन है, अगर 500 मिलीलीटर उसमें वाटर है, तो मोल फ्रैक्शन अब आपने फाइंड कर लिया, उससे आप मास ऑफ CO2 dissolved in that 500 milliliter water, और how will you find that? Who will tell? Guess it. मोल फ्रैक्शन से आप निकाल सकते हो। पहले तो मोल्स ही निकलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के,
ठीक है। अब लेकिन एक चीज याद रखो, मोल फ्रैक्शन आपको ये नहीं कहता कि आपको कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर वहां पे 1 लीटर ही लेना है, या मतलब जो अमाउंट वाटर का आपको क्वेश्चन में पूछा गया है आप उसी वाटर के लिए नंबर ऑफ मोल्स वाटर के निकाल लो और नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के आप फाइंड कर लो। फॉर एग्जाम्पल मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 का फॉर्मूला क्या होगा? This will be equal to number of moles of CO2 over number of moles of water plus number of moles of CO2. ये फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन का। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आपको निकालने 500 मिलीलीटर वाटर से, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो N of H2 is equal to 500 मिलीलीटर वाटर की डेंसिटी 500 मतलब 1 होती है वाटर की डेंसिटी, तो उसको 500 ग्राम में कन्वर्ट कर लो सीधा एंड यू विल गेट हियर 27.75 आ जाएगा। 55 का हाफ कर दो आप, 27.78 मोल वाटर आपके पास आ गए और ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब आपने क्या करना है बेटा, यहाँ दो जगह पे है ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। एक चीज देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आपके पास है 27.78, इट्स अ लार्ज अमाउंट। एंड इफ यू सी द मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन 10⁻³ को अगर हम यहाँ पर प्रॉपर लिखते हैं तो 0.115 फ्रैक्शन में ही प्रेजेंट है सिर्फ CO2। तो इट्स अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो फॉर सच काइंड ऑफ सॉल्यूशन अगर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू माइनस नेगेटिव पावर्स में आ रही है तो यू कैन इजीली इसको आप यहाँ पर डिनोमिनेटर में से नेग्लिजिबल कर सकते हो। ठीक है, तो यू कैन फ्रेम दिस फॉर्मूला as X CO2 is very less, hence it can be written as mole fraction of CO2 will be equal to this. मतलब you can neglect that value. ये चीज क्लियर हो गई। नेग्लेक्ट कब करना है आपने? अगर आपको मोल फ्रैक्शन जो फाइंड हुआ है वो काफी कम है, बहुत कम है। ठीक है, तो यू कैन इजीली नेग्लेक्ट, उसको रख भी दोगे तो कोई फर्क नहीं आएगा, बट इट विल मेक योर कैलकुलेशंस इजी। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। दिस मोल फ्रैक्शन इज 1.517 10⁻³ इज इक्वल टू, ये आपको फाइंड करना है, एंड वाटर का जो आपके मोल्स थे 27.7। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू, हियर जस्ट लेट मी चेक, सो 42.14। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास आ गए 42.14 मोल। अब क्वेश्चन में यहाँ अमाउंट ऑफ CO2 पूछा है, अगर आप मोल में भी छोड़ दोगे ना आंसर तब भी रॉन्ग नहीं करेंगे, बट जनरली हम अमाउंट को मास में रिप्रेजेंट करते हैं। तो 42.14 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा? सॉरी, ये एक बार मैंने यहाँ पे ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज 42.14 10⁻³ ये पार्स है यहाँ पर, तो दैट पार विल रिमेन एज सच। ठीक है, अब इसको मास में कन्वर्ट करना, क्या करोगे बेटा? हाउ टू कन्वर्ट मोल इनटू मास? मोल्स को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो मास ऑफ CO2 विल बी 42.14 10⁻³ multiplied by 44. 44 is the molecular mass of CO2. जब इसे मल्टीप्लाई करोगे it comes out to be 1.854. So this is the answer of this question. क्लियर हो गया आपको? ऐसे क्वेश्चंस में आपको जितने मिलीलीटर वाटर के लिए अगर सॉल्यूट का मास फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन आप KH और पार्शियल प्रेशर यूज करके निकाल लोगे, फिर उस मोल फ्रैक्शन से जब मोल फाइंड करने हैं आपको वाटर का मास वो जितने मिलीलीटर या अगर ग्राम में दिया तो ओके है, मिलीलीटर जितना है उतना ही ग्राम ले लो, बिकॉज प्योर वाटर हैज डेंसिटी 1। ओके, तो आपको वही कंसीडर करके, क्योंकि हमें वाटर के ही नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो विल कंसीडर डेंसिटी ऑफ वाटर एज 1 and by that we can easily convert volume into mass. ठीक है? Any doubt in this question? If any doubt you can ask